پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ ہم نے تفتان کے بارڈر کو اس طرح کھول دیا، شاید ہی کسی عقل مند نے کہا ہوگا کہ آنے دو ان لوگوں کو، یہ جب آئیں گے کورونا آئے گی، جس طرح افغان مہاجرین آئے تھے اس کے ساتھ ڈالر آئے تھے، اس کے ساتھ بھی ڈالر آئیں گے۔ کوڑیوں کے باو انصاف یہاں پہ بکا ہے۔ ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ افسوس ہوگا مجھے، لیکن کیا کریں، ملکی اور صوبے کے حالات کی طرف اپنا نقطہ نظر پیش کروں۔ سب سے پہلے تو ہمارے وہ کولیگز جو کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، جس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، ٹریجری بینچز سے بھی کچھ ہمارے ممبران ہیں، اپوزیشن سے کافی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے اور اس ملک میں اور دنیا میں جو یہ وبا جس انداز میں پھیلی ہوئی ہے، دعائی کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو اس مرض سے شہید ہوئے ہیں ان کی اللہ مغفرت فرمائے۔ جناب اسپیکر صاحب، شروع کروں گا اس شعر سے۔ مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم سفر اس لیے، میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ۔ ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں۔ عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو۔ ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں۔ اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے، بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے۔ کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی ہیں؟ کیا جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے، اچھی تعلیم، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور
प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते, लेकिन इंसाफ कहां मिलता है या इंसाफ कहां बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौड़ियों के भाव जो इंसाफ यहां पे बिका है, और खरीदार भी हम हैं। हमने इस अवाम को मजबूर किया है वो इंसाफ ले नहीं, इंसाफ को खरीदें। और मंडियों में जो जिस तरह इंसाफ बिकता है, शायद ही इस मुल्क के अलावा कहीं बिकता हो। माशी तरक्की, रोजगार के मौके, हमने तो कहा कि जी हम रोजगार देंगे लोगों को। सनतें रोज बरोज बंद होती जाएं। आपकी सबसे बड़ी सनत जिसको स्टील मिल कहा जाता था, आज उसके मजदूर सरापा एहतजाज हैं। प्राइवेटाइज कराया जा रहा है उसको, उन लोगों को बेरोजगार कराया जा रहा है। उस हल्के के नुमाइंदे यहां पे एहतजाज करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। होना तो ये चाहिए था कि फ्रंट डेस्क जो है चेयर्स बनी होती, नोट्स लेते, लेकिन संजीदगी का अंदाजा आप इसी से कर सकते हैं कि हुकूमत बजट पेश करने में, जिस दिन पेश होता है वहां पर आपको जो है जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन बजट पास होता है वहां पर जो है आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिस वक्त तजावीजें दी जाती हैं, जिस वक्त बहस दी जाती है, तो खुर्दबीन से ढूंढना पड़ता है कि कौन कहां पर बैठे। ये तमाम उस वक्त मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो है मुंतखब होके आए, जिनको अवाम का दर्द हो, जो अवाम की मजबूरियों का उनको एहसास हो, जिनको अवाम की मुसीबतों का एहसास हो। बैठे बैठे सुबह हम उठे, रात को रिजल्ट, सुबह सवेरे रिजल्ट आ गया और जी वो जीत गया, उनको एहसास कभी नहीं होगा। जो नंगे पांव उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल स्ट्रगल जिन्होंने किए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी कौम की जानें गंवाई हैं, उनको यह एहसास होगा कि बजट की अहमियत क्या है, वो बजट से क्या लेना चाहिए और आवाम को क्या डिलीवर करना चाहिए। होता होगा, लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि तजावीज़ें तो हम देते हैं, दलाइल भी देते हैं, अपोजिशन की तरफ से डेटाज भी लेके आते हैं, लेकिन असर किसको होता है? लगता है ऐसा है कि हम हाइड पार्क कॉर्नर में जो तकरीरें कर रहे हैं। लंदन में एक पार्क है जिसको हाइड पार्क कॉर्नर कहते हैं। इतवार के रोज हर कोई अपना डब्बा उठा के वहां पर खड़ा हो जाता है और दिल की बड़ा से निकालता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, फिर एक उस डब्बे से खोखे से उठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फ्री है सबके लिए। इन ऐवानों को हम लोगों ने जो है माजरत के साथ हाइड पार्क कॉर्नर बनाया हुआ है, जिसमें ना तजावीजें ली जाती हैं, और वो मेंबर चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, अपने हल्के इंतखाब से मुंतखब होके आए। लोगों का एहसास है उनमें, वो लोगों के एहसास को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप उनकी तजावीजों को हल तो नहीं कर सकते, कम से कम नोट तो कर लें। अगर आप लोगों के पास कागज के टुकड़े नहीं है, आप लोगों के पास कलम नहीं है, हम सब प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। चंदा करेंगे, हम मौलाना साहब से कहेंगे तमाम मस्जिदों में ऐलान कर लें कि कागज और चंदे जो है इकट्ठे करके आप लोग उनसे नोट फरमाएं। ये एक दूसरी भी रवायत रही है, हर हुकूमत पिछली हुकूमत को मौरज़ इल्जाम ठहराती है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमतों ने भी यह किया होगा, उससे पिछली हुकूमतों ने ये किया होगा कि जी ये बदहाल मईशत हमें वर्षों में मिली है, खाली खजाना हमें वर्षों में मिला है। ओ भाई, अगर इसको आप खींचते जाएं विरसे विरसे में, ये तो 1947 तक जाके पहुंच जाएगी बात। वर्षा तो वहां से शुरू होता है ना। फिर तो आप कहेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हमें पाकिस्तान खाली खोखला करके दिया हुआ था। आप ये कहें कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं, कहीं मुझे तो शक है जनाब स्पीकर, अगला बजट जब आएगा कहीं हम उसको कोरोना या टिड्डी दिल के हवाले तो नहीं कर देंगे कि जी टिड्डी, ये बजट जो हमें वर्षे में मिला है इसकी जिम्मेदार कोरोना थी, ये वाला बजट।
मतलब अगले साल आके ये बोलेंगे जो गया हुआ बजट है उसका जिम्मेदार या तो टेडी दिल है या कोरोना है। बजट से पहले चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, पेट्रोल का बहरान था, अशियाए खुर्दनोश का बहरान था, अमन अमान का बहरान था, लोगों की घरों में जो है उनको उनकी हिफाजत का बहरान था। लेकिन उसके लिए क्या कुछ किया गया? रोजगार के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड की तरफ जनरल स्पीकर मैं आऊंगा, शायद मुझसे काबिल यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी नज़र से ये नहीं गुजरी होगी या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो दूध का जला है ना वो लस्सी भी फूक फूक पर पीता है। मिनिस्टर की तकरीर का अगर किसी साथी के पास है, सफा नंबर 15 पर देख लें, ये उनकी तकरीर है। एनएफसी अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। इज इट ए मिसप्रिंट और स्लिप ऑफ टंग? नहीं, ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी के चर्चे हम कई अरसे से सुन रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवस्सुस से हुकूमत और मिनिस्टर से जो इसकी वजाहत चाहूंगा कि ये नजरसानी किस तरह की जा रही है। क्या वो बातें जो कही जा रही थी कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाएगा, ये उसी का हिस्सा है? ये किसकी पॉलिसी है? हुकूमत की पॉलिसी है, उनकी इत्यादियों की पॉलिसी है या किसी और की पॉलिसी है? इसकी मैं वजाहत चाहूंगा। सूबों का जो, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊं क्योंकि काफी साथियों ने इस पर बात की है, जहां बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर काफी वजाहत की थी। सूबों में जो एनएफसी का जो हिस्सा है जिसको कम किया गया है, सिंध 2019-20 में था, उसका फिगर मैं आपको बताऊं 814.95 मिलियन, जो इस साल घटाकर 742,003 मिलियन कर दिया गया है। पंजाब का 1611.364 मिलियन, उसको घटाकर 1439.116 मिलियन करा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा जो पिछले साल 533.251 मिलियन था, उसको 477.519 मिलियन कर दिया गया है। बलूचिस्तान तो किस खाते में नहीं है, हम तो बस चले आ रहे हैं। जो 294,983 था अब 265,054 कर दिया गया है। तालीम, हायर एजुकेशन के लिए सुनाए जो बजट स्पीच में 59 अरब से बढ़ाकर 64 अरब कर दी गई है। बलूचिस्तान वाले चीख रहे हैं, आज भी 18 को बलूचिस्तान हुकूमत का बजट पेश होना था जिसमें आपकी इत्यादि भी हैं, आप खुद भी इस हुकूमत में हैं। 30 अरब उसकी जो है कटौती की गई है और उसके बदले में जो पैकेजेस दिए गए हैं, कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब के पैकेज दिए गए। और बलूचिस्तान बेचारे को एक छोटा सा पैकेट 10 अरब का, पैकेट में बोलूंगा, पैकेज नहीं है, एक छोटा सा पैकेट दे दिए गए 10 अरब का। पीएचडीपी जो लास्ट ईयर 663 बिलियन थी, अब उसको घटाकर 650 बिलियन कर दिए गए। पूरे मुल्क की पीएचडीपी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल स्पीकर साहब, आपका भी ताल्लुक उस बलूचिस्तान से, और कराची टू कोयटा, कोयटा टू चमन, इस रास्ते पर आपने भी सफर किया होगा और 813 किलोमीटर का ये फासला है जिसमें कराची से लेकर चमन तक जो जिले आते हैं, लसबेला, खुजदार, कलात, मस्तूम, कोयटा, पिशीन और चमन, ये तमाम के तमाम इस रोड पर आते हैं, जिले हैं ये। और इस रोड को ये बनाया था 1973 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, यही एक वाहिद जिसको आप कहें कि हाईवे जिसको कहा जाता है, एक रोड है। और फिर उसको आरसीडी का नाम दिया गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में शायद ही दहशतगर्दी से जितने लोग हलाक नहीं हुए हों, इस रोड पर रोजाना के तहत जो है लोग हलाक होते हैं। 4,500 लोग इस रोड पर हादसात में हलाक हुए हैं। पिछली पीएचडीपी में हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते हमें 6 लाइन वाला मोटरवे नहीं चाहिए, वो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि वो कुशादा दिल आपके हो सकते हैं, हम इतने बड़े कुशादा रोडों पर नहीं चल सकते। हमें सिर्फ ड्यूल कैरेजवे दिया जाए। लास्ट पीएचडीपी में जो रखा गया था, इस पीएचडीपी में उसको कोरोना खा गया या टिड्डी दिल खा गया। ये इसी तरह बलूचिस्तान को अपने साथ चलाएंगे। यही है बलूचिस्तान की अहमियत, यही है बलूचिस्तान की
एहसास महरूमियत को खत्म करने के तरीके, और ये रोड आपके कोस्टल हाईवे से भी जाके कनेक्ट होता है, आपका जो सीपेक का जो रूट है बेसिमा सुरार से, ये उससे भी कनेक्ट होता है, और ये रोड आपका रत्तो डेरो टू खुजार इससे भी कनेक्ट होता है, और आगे चल के जो तफ्तान का जो रोड है जिसको ताफ्तान कहा जाता है, बड़ी एक लजीज रोटी होती है खाने के लिए, ये उस तफ्तान से भी रूट से जो है नुश्की से आगे जाके कनेक्ट होता है। इसके लिए आप एक पीएसडीपी में जो स्कीम रखी गई है तो उसको भी आप ड्रॉप करते हैं। आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी। मैं थोड़ा कोरोना की तरफ आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आलमी वबा है और तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसकी जो बेसिक्स जरूरतें थी, एहतियात, डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका निकला नहीं। कोई कहता है सना मक्खी खा लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो, कोई कहता है प्याज खा लो, कोई कहता है अदरक खा लो। वो सब सब्जियां खा खा के हमारे तो गुर्दे फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये दुनिया में फैली थी, सबसे पहले चाइना में, फिर ये फैलती हुई ईरान और आपकी इटली तक जाके पहुंची, जहां पर कई हलाकतें, हजारों की तादाद में हलाकतें हुई। ये एक वार्निंग थी हमारे लिए, लेकिन हमने एहतियात नहीं की। SOPs जो उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी थी, आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तफ्तान के बॉर्डर को इस तरह खोल दिया, शायद ही किसी अक्लमंद ने कहा होगा कि आने दो इन लोगों को, ये जब आएंगे कोरोना आएगी। जिस तरह अफगान माजरीन आए थे उसके साथ डॉलर आए थे, इसके साथ भी डॉलर आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द आए थे तालिबान की शक्ल में, वो आए थे, इसके साथ ये डॉलर भी आएंगे। 9/11 के बाद जो दूसरे की जंग को उठा के हमने अपने उनमें डाल दिया, घरों में फैला दिया, शायद उसके बदले में यहां से कुछ बेच के और वहां से हमें डॉलर मिलेंगे। ये नहीं हुआ। तफ्तान के बॉर्डर को खोलने की इजाजत किसने दी थी, ये जानते हुए भी कि ईरान में जो अमवातें हुई हैं, मैं कतई इस पे नहीं हूं कि वहां पर जो लोग ज़्यादती गए थे उनको रोका जाता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल करनी थी। देखे थे आपने जो उनके कैंप्स थे, जिन कैंपों में उनको रखा गया था, नॉर्मल बंदा भी उन कैंपों में जो है टेंटों में एक दिन तक नहीं रह सकता। अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, अगर इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, मैं आज ये कहता हूं कि जो भी हलाकतें हुई हैं, इनकी FIR उन हुक्मरानों और उन पर कटाई जाए। यही उनके जिम्मेदार है। एक रोड पर हादसा होता है, उसकी FIR अगर उस ड्राइवर पर कट सकती है, तो इन हजारों की तादाद में जो यहां पर हलाकतें हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, घर उजड़ गए, इनकी FIR क्यों नहीं कटती इन पर? जहां तक लोकस का मामला है, मेरे ख्याल में यही महीना था डिप्टी स्पीकर साहब, हमने कहा था कि जी ये लोकस आ रहा है, टेडी दिल आ रहा है, उसके लिए एहतियात की जाए। वहीं पर जो बात हुई, जरदारी साहब ने भी बात की, बात कई अराकीन ने इस पर बहस की, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। वो लास्ट ईयर जो चंद जिलों और सूबों के चंद इजला तक महदूद था, आज पूरे मुल्क में फैल चुका है। बलूचिस्तान के 32 इजला इसकी लपेट में है। कोई भी फसल नहीं छोड़ी। जहां पर गंदम थी, गंदम गई। जहां पे कपास की फसल थी, कपास खत्म हो गई। जहां पर वेजिटेबल्स की फसलात थी, उनको तबाह कर दिया। यहां तक कि हमारे जो ऑर्चर्ड हैं, सेब, पीचेस, आपके चेरीज, उन फसलों को जो इन्होंने तबाह कर लिया। तो इसकी हमारे पास जब पूछे थे कि जी हमारे पास स्प्रे करने के लिए जो एरोप्लेन नहीं है, एक वजीर आला के लिए आप एरोप्लेन ले सकते हैं, आप F-16 ले सकते हैं, एक स्प्रे का जहाज नहीं ले सकते। तो इसमें मैं आपकी अक्ल की तारीफ करूं या जो मैं सोच रहा हूं, अपनी सोच और हिमाकत पर जो है आंसू बहाऊं। और आज भी इस पर आगे, और इस मालूम होगा यहां पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, ये खत्म इस तरह नहीं होता। इस साल वो मरेगा, लेकिन वो अपने अंडे छोड़ के जाएगा और वो ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर। और खुदा ना खासा अब भी इसका तदारुक नहीं किया तो इसकी तादाद आज अगर लाखों में है, अगले साल इनकी करोड़ों में होगी। आज ये करोड़ों में है तो अगले साल इनकी तादाद जो अरबों में होगी। फिर ना आप बचा सकेंगे, ना आपके अरब दोस्त इसको बचा सकेंगे। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। बड़ा शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी।
जनाब डिप्टी स्पीकर बहुत साहब, शुक्रिया जी। आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे। ऐसी अगर मुझसे कुछ किसी भी साथी की दिल आज़ारी हुई है, मैं इन्हें किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया है, अपने लोगों के खून के धब्बे आप लोगों को दिखाएं। अगर गलती से खून के छींटे किसी के दामन में लग गए तो उसका कसूर और मैं नहीं।